ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಈ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇವರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಆತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಮ ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಯಾರದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋಧಿಸು, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಅದರ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡು. ಕರ್ತನೆ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನೀನೇ ಯಾರದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 146ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 146ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ವಿಲ್ ರೀಡ್ Psalms 146 as responsive reading. Psalm 146 responsively will read. हम भजन संहिता 146वां अध्याय उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में पढ़ेंगे. भजन संहिता 146वां अध्याय उत्तर के रूप में हम पढ़ेंगे. यह की स्तुति कर, है मेरे मन यहोवा की स्तुति कर. मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा. जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा. तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं. उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा. उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी. क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है. वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा. वह पिसे हुए का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है. यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है. यहोवा अंधों को आंखें देता है. यहोवा झुके हुए को सीधा खड़ा करता है. यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है. यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है. आखिरी वचन हम साथ पढ़ेंगे. है सियोन, यहोवा सदा के लिए, तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा. यह की ಸ್ತುತಿ करो. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ परलोक प्रार्थना ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. आइए हम अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे. प्रार्थना के पश्चात हम सारे लोग मिलकर प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को हम कहेंगे. प्रार्थನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಿ. ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಿ. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜಯವಂತರ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ದಿನ ತನಕ ನಡೆಸಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಮತ್ತು ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವಾಗ ದೇವರೇ ನೀನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನಿನ್ನ ಜನರು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರು ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳು, ಚಿಂತೆ, ಭಾರಗಳು, ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಬಂಧನಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ, ರೋಗಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಡೆಸು. ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತೇಜವು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡು. ಇವರ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದವರು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು ಕರ್ತನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊರೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಾವು ಆಶೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕರ್ತನೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪುನಃ ತೆರಿಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜರುಗಿಸು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿಸು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡು ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು ಯೆಹೋವನೇ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರ, ಸೇವೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಭೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ತುಂಬುವಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಆತನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಿಷಪ್ಸರು, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು, ಸಭಾಪಾಲಕರು, DS-ರು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮುಂಬೈ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮೇಡಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಆಶ್ವಸಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು, ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಘನ, ಮಾನ, ಮಹಿಮೆ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜನಾಗಿರುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕ ನೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧಿಸುವಂಥ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇದ ಪಾಠ ಕಾರಿಸೋಣ ಭಾಗ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35 ಮತ್ತು 36ನೇ ವಚನ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35, 36ನೇ वचन. व्यवस्था विवरण, पुराने नियम में व्यवस्था विवरण, उसका 32वां अध्याय 35 और 36 वचन हम पढ़ेंगे. व्यवस्था विवरण 32, 35 से 36 वचन. In the Old Testament, we'll be reading book of Deuteronomy, chapter 32, verses 35 and 36. Deuteronomy, chapter 32, verses 35 to 36. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ರಿಂದ 21ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. After the Old Testament reading, we will be reading New Testament
from the New Testament, it will be Romans chapter 9, chapter 12, verses 9 to 21. Chapter 12, 9 to 21. इसके पश्चात हम नए नियम का भाग पढ़ेंगे, रोमियो को लिखा हुआ पत्र, उसका 12वां अध्याय 9 से लेकर 21 वचन तक। पहले हम पुराने नियम का पाठ पढ़ेंगे। ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 35 और 36। पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने का समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है, और जो दुख उन पर पड़ने वाला है वे शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही, और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन, उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। पढ़े हुए भाग को परमेश्वर आशीषित करे। नए नियम का भाग रोमियो को लिखा पत्र, उसका 12वां अध्याय 9 से लेकर 21 वचन तक। रोमन्स chapter 12 verses 9 to 21 from the New Testament. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor, not lagging behind in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, persevering in tribulation, devoted to prayer, contributing to the needs of the saints, practicing hospitality. Bless those who persecute you, bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. Be of the same mind toward one another. Do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation. Never pay back evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of all men. If possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. But if your enemy is hungry, feed him, and if he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. May the good God add his blessings upon the reading of this portion. Amen. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋಣ। इस समय हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। पुराने नियम का भाग जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, और नए नियम के भाग हम लोगों ने पढ़ा। पुराने नियम और नए नियम में परमेश्वर का एक संदेश या एक वचन जो पुराने नियम में लिखा गया है, पौलुस उसको नए नियम में फिर एक बार दोहराता है कि बदला लेना मेरा काम है। प्रियो, परमेश्वर हम सभी से इतना प्यार करता है, इतना हमें चाहता है कि वो नहीं चाहता कि हम गलत राह पर चले या गलती हमसे हो जाए। इसीलिए वो कहता है कि तुम बदला या तुम दुश्मनी निकालना या लेना न करे, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अब आज का जो संदेश का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो ये है, अपना राह, आवर वे। हर एक ईसाई वो मुद्रित किया गया है, या इस तरह हम कहेंगे कि हमारे हृदय पर वो मुद्रित
या वो परमेश्वर ने एक मुद्रा डाला है कि ये मेरा व्यक्ति है। प्रियो, जब वो हमें मुद्रित किया है तो ज़रूरी है कि हम हमारी राह को, हमारे मार्गों को उसके इच्छा अनुसार या उसके बताए हुए रास्ते अनुसार हमें चलना उचित है। और उस राह पर चलने के लिए कुछ बातें परमेश्वर ने या कुछ सलाह परमेश्वर ने हमें दिया है। ದೇವರ ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಬ್ಬ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಕ್ ಅಥವಾ ಬಾಸ್, ಈ ಬಾಸ್ ಒಂದಿನ ತನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಬಾಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, मैनेजर मनेलिर्ताना, मनेಯಲ್ಲಿ ये मैं हिंदी में कहूँगा, एक बार एक ऐसा घटना घटी कि एक कंपनी का मालिक अपने मैनेजर को जो घर में है उसे वो फ़ोन करता है, और ये जो मैनेजर है ये सोया हुआ रहता है, और सोने से पहले वो अपने नौकरानी से कहता है कि मैं बहुत थका हूँ, मुझे कोई भी अगर फ़ोन करे तो फ़ोन ना दे और मुझे शांति से सोने के लिए दे। फ़ोन सब उठाकर उनसे कहे कि अब वो सो रहे हैं, अब मैं नहीं दे सकती, ये उठने के बाद मुझे बता। ये निर्देश उस मैनेजर अपने नौकरानी से कहा हुआ था और कहकर वो सो गया। और इसी बीच उस मैनेजर का बॉस का फ़ोन आता है, मालिक का फ़ोन आता है, तो ये नौकरानी जाकर फ़ोन उठाती है और नौकरानी से मालिक कहता है कि उस व्यक्ति को उठा या तुम्हारे मालिक को उठा और उनसे कहे कि मैं उनका बॉस या उनका कंपनी का मालिक मैं फ़ोन कर रहा हूँ या मैं बातें करना चाहता हूँ उनसे। तो ये स्त्री, ये नौकरानी तुरंत उनसे कहती है कि मेरा मालिक सो रहा है, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो ये जो कंपनी का मालिक है, बॉस है, वो कहता है कि अरे उससे बोल कि मैं उसका बॉस हूँ मैं। तो ये नौकरानी कहती है कि सर आप बॉस है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपकी नौकरानी नहीं बल्कि इनकी नौकरानी हूँ। मैं आपके लिए काम नहीं करती बल्कि इनके लिए काम करती हूँ, इसीलिए इनका जो निर्देश है, इनका जो बातें हैं उसका अनुसरण करना मेरा कर्तव्य है, उनका अनुसरण करना मेरा कर्तव्य है। ये कहकर वो फ़ोन रख देती है। और जब ये मैनेजर उठता है नींद से, उठने के बाद वो अपने मालिक को फ़ोन करता है। जब पता लगता है कि उसका मालिक ने फ़ोन किया था तो वो फ़ोन करता है, तो मालिक उससे पहले ही शब्द कहता है कि वो तुम्हारी नौकरानी जो है वो बहुत ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जो अपने मालिक के लिए वफादार रहते हैं, क्यों ना तो वो नौकरानी को मेरे घर के लिए भेज, क्योंकि ऐसा वफादार, ऐसा आज्ञाकारी लोग मिलना मुश्किल है। प्रियो, आज परमेश्वर हमसे ऐसी ही आज्ञाकारिता के बारे में चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचनों का अनुसरण करें, उसकी बातों का अनुसरण करें। लेकिन कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग, कहाँ हैं ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर की बातों का संपूर्ण रीति से अनुसरण करें। देखिए पौलुस कहता है, पौलुस अगर हम 9 से 12 वचन में
देखें तो वहाँ पर पौलुस कहता है कि हमें वो पूछता है। 9 से 12 वचन अगर हम देखें, 12 रोमियो को लिखा पत्र उसका 12वां अध्याय 9 से 12 वचन तक अगर हम देखें तो वो इस तरह कहता है कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारा के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो, परस्पर आदर करने और मैं एक दूसरे से आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में बरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। देखिए वो यहाँ पर इस तरह कहता है, पौलुस हमें पूछता है कि तुम, अगर हम इसको सारांश निकालें तो वो कहता है कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो? इतने साल हम, जब ये प्रश्न आता है तो अगर हम देखें तो हम इतने साल हमारे जीने के लिए काम कर रहे हैं, हमारी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे परिवार के लिए काम कर रहे हैं, हमें ऐशो आराम की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं, हम भिन्न भिन्न रीतियों के लिए, भिन्न भिन्न विषयों के लिए काम कर रहे हैं, हम प्रेस्टीज, हमारा जो स्थान बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इन जो पौलुस कहता है, पौलुस के लिखे हुए शब्दों में, पौलुस के शब्दों में पौलुस कहता है कि तुम्हारा प्रतिदिन का जीवन बदलाव का जीवन होना चाहिए। तुम किस तरह रहे कि तुम्हारा प्रेम निष्कपट रहे और बुराई से घृणा करने वाले तुम रहे, भलाई में लगे रहने वाले तुम रहे। यानी कि यहाँ पर वो हमारे जो ईसाई जीवन का सिद्धांतों को, ईसाई जीवन का सिद्धांतों को हमारे प्रतिदिन के जीवन में अपनाने के लिए वो कह रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि उस रोमी कलीसिया को, रोमियो के कलीसिया को इस तरह कहते हैं कि उसे प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि हम हमारे जो कार्य है या हमारा जो काम है, उस काम में या उस काम के ज़रिए हमारे मार्गों को, जो विश्वास का मार्ग है, उस मार्गों को दिखाने वाले हमें बनना है। इस दुनिया को हमारे स्वर्गीय मार्ग दिखाने वाले हमें बनना है। यानी कि दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के योजना अनुसार हमारे जीवनों को व्यतीत करने वाले लोग होना चाहिए। देखिए उसमें दूसरी बात यह है कि हम ऐसे ईसाई, ऐसे मसीह के लोग रहना चाहिए जो एक दूसरों को प्रोत्साहित करते हुए, एक दूसरों को आदर करते हुए चलाने वाले लोग होना चाहिए। एक बार हम सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, एक दूसरे को हम एक दूसरे के प्रति हम अच्छी भावनाएं रखते हैं। ठीक है, ये सारी बातें बोलने के लिए बहुत सरल है, अच्छा है, लेकिन जब वास्तविकता में जब हम करने जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। देखिए एक बार मेरे एक गहरा मित्र जो विश्वास में बहुत मजबूत है, उससे बातचीत हो रही थी मेरा तो उसने ऐसा कहा कि ये बहुत आसान है, मैं अगर कहूँ कि मैं परमेश्वर यीशु के लिए मर सकता हूँ, अगर मुझे कोई यीशु के लिए, अगर कोई मुझे गोली मारे तो मैं उस गोली के ज़रिए मरने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक बार मरा, हीरो बन गया, कि प्रभु के लिए मरा। लेकिन जो कठिन
अवस्था है, जो बहुत ही धैर्य का अवस्था है, या परमेश्वर जिसे जो चाहता है वो ये कि हम प्रतिदिन प्रतिदिन मरने के बजाय हम परमेश्वर के लिए जिए, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के लिए जिए। हाँ, ये सच बात है, ये सच बात है। एक बार मरना आसान है, लेकिन हर दिन हमारा जो डिसीजंस है, हमारा जो निर्णय है, इस निर्णय को, छोटे छोटे निर्णय को करने में मानो हमारा जान निकल जाता है। उसे करने के लिए, उस छोटी छोटी सही निर्णय करने के लिए जो परमेश्वर के वचनों से हम जोड़कर अगर निर्णय करते हैं तो वो बहुत ही कठिन होता है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार अगर कोई निर्णय हम करते हैं बहुत ही कठिन होता है, लेकिन उसे करने वाले लोग, वैसे करने वाले हमें बनना है। मरना आसान है, लेकिन प्रभु के लिए जीना बहुत मुश्किल है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए जिए, उसके वचनों का अनुसरण करते हुए हर छोटी छोटी बातों में उसके वचनों के तालमेल से हम निर्णय करते हुए जीना। जो मुश्किल है वो करते हुए हमें दुनिया को दिखाना है कि हम भिन्न हैं, अलग है। और इसीलिए पौलुस के वचनों में, या पौलुस जिस तरह कहता है कि हम चुने हुए लोग हैं, निकाले गए हुए लोग हैं, अलग लोग हैं। हम इस दुनिया के लोगों की तरह नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें वो अपना लोग या अपना जन ऐसा कहते हुए स्वीकारा है। इसीलिए हमें दिखाना है एक कलीसिया को, एक समाज होकर हमें दिखाना है कि हम इस दुनिया से भिन्न हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि दुनिया, जब हम कहते हैं दुनिया में, या लोगों को कहते हैं और लोगों को कहते हैं कि हम ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो लोग ये कहते हैं या ये समझते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत शांति प्रिय लोग हैं। प्रियो, ये हमारे कर्तव्यों से या हमारे व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि यीशु के वजह से लोग ऐसा जानते हैं या ऐसा हमारे बारे में सोचते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उस बात को कायम रखें। लोग ऐसा ना कहें कि अरे ईसाइयों का परमेश्वर तो अच्छा है, लेकिन ईसाई लोग बेकार है, ऐसा ना कहना चाहिए। इसीलिए वो टेस्टिमनी को, वो गवाह को या गवाही को हमें संभालना है, हमें रखना है। आज बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग जैसे दुनिया के लिए, दुनिया के लोग जो कर रहे हैं वैसे हम भी अपनाए हुए हैं। हम भी दुनिया की जैसे अपने आप को बना कर रखे हैं। पौलुस यहाँ पर बहुत ही सुंदर रीति से कहता है, वो ये कहता है कि तुम हमेशा 11 वचन प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्मद में बने रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। आज आत्मिक उन्मद में, यानी कि आत्मिक स्थिति में बढ़ने के लिए कौन इच्छा करता है? कौन प्रभु की सेवा करने के लिए इच्छुक है? बहुत ही कम है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। इसीलिए प्रभु कहता है कि बहुतों को बुलाया, आई हैव कॉल्ड मेनी बट आई हैव चोजन फ्यू। बहुतों को बुलाया, केवल थोड़ों को चुना गया है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ऐसा ही होगा, कलीसिया का दृश्य ऐसा ही होगा, मेरे लोगों का दृश्य या हर्ष
ऐसा ही होगा। प्रियो, फिर भी वो परमेश्वर इतना दयालु, इतना करुणामय, वो इतना प्रेमालु या प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि हमें मौका दिया है, कि हमें वो मौका दिया है कि हम उसकी सेवा करें। हम प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन उसकी इच्छा अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करें, हमारा मार्गों को तैयार करें। तीसरा हम ये देखते हैं, कि हम किस तरह एक दूसरे के प्रति व्यवहार करना है, किस तरह एक दूसरे के प्रति व्यवहार करना है। हम ठीक है, दुनिया के लोगों से, जैसा हम कहते हैं कि हम दुनिया के लोगों से अच्छा उनसे व्यवहार करें, हम करते हैं। दुनिया के लोगों से बहुत सारे लोग अच्छे व्यवहार करते हैं। वी ट्राई टू मेंटेन अवर टेस्टिमनी। हम अपनी गवाही को लोगों में रखने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन एक जगह चूकते हैं, वो ये कि हम आपस में तालमेल नहीं रखते, आपस में एक दूसरे को प्रोत्साहित नहीं करते, हम आपस में एक दूसरों को उठाते नहीं हैं, संभालते नहीं हैं। आज कलीसिया में ग्रुपिज्म आप देखते हैं, कलीसिया में हर तरह का यंत्र मंत्र तंत्र चलता है, लोग एक दूसरे के विरोध में चलते हैं। आज जो कलीसिया में है, कलीसिया के भागदौड़ में पूरी तरह है, वो व्यक्ति, उससे पूछो, वो व्यक्ति बताएगा कि कलीसिया के अंदर और कलीसिया के बाहर की दुनिया अलग नहीं है। हम ढोंग कर रहे हैं। प्रियो, पौलुस इस तरह कहता है कि हमारा प्रेम निष्कपट होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हमारा प्रेम निष्कपट हो। हम जैसे अंदर है, कलीसिया के अंदर हो, या हमारे अंदर का जो गुण है वो हम बाहर बताएं, या बाहर जो दिखाते हैं अच्छाई वही अंदर होना चाहिए। कलीसिया के अंदर भी हम जो बाहरी रूप दिखाते हैं, सुंदर रूप, वही रूप अंदर भी होना चाहिए। तब जाकर वाकई हम परमेश्वर की राज्य की ओर चल सकते हैं, या वो मार्ग जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उस मार्ग पर चल सकते हैं। नहीं तो हम उस मार्ग के चलने के काबिल नहीं रहेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह का एक वचन जो मुझे इस समय याद आ रही है, सारी दुनिया जीत कर अगर खुद का ही आत्मनाश करेगा तो क्या लाभ है। What shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? प्रियो, ज़रूरी है कि हम आपस में भी तालमेल रखें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सहायता करें, और खास करके परमेश्वर की सेवकाई करने वालों को आदर सम्मान करें। पौलुस यहाँ पर लिखता है 13वें वचन में, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों का ध्यान उसके लोग ही रखें। इसीलिए हम जिस तरह बाहरी लोगों के साथ सुंदर रीति से अपने रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के साथ हमारा सुंदर रिश्ता अगर रखना है तो इन पढ़े हुए भागों में जो जो लिखा गया है उसका अनुसरण करें। हमें किसी से बदला लेना नहीं है, हमें किसी से बैर रखना नहीं है। हम
बस अच्छाई करते रहना है। परमेश्वर के वचन में पौलुस इस तरह लिखता है कि यदि तुम्हारे दुश्मन भी अगर हो, वो अगर भूखा है तो उसे खाना दे, वो अगर प्यासा है तो उसे पानी दे। ऐसे करने से उसके सर के ऊपर जलता हुआ कोयला रखा जैसा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी से बैर ना रखते हुए, हम अंदर के लोग या बाहर के लोग, कलीसिया के अंदर के लोग हो या कलीसिया के बाहर के लोग हो, सभी से एक जैसा अगर हम प्रेम करते रहें, विशेषकर अंदर के लोगों को, अंदर के लोगों से हम प्यार करते हुए प्रोत्साहित करते रहें, तो निश्चित परमेश्वर के अनुग्रह के हम परमेश्वर के अनुग्रह हम पर होगी और परमेश्वर हम सभी को आशीषित करते हुए चलाएगा। फिर एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा मार्ग जो है, हमारा रास्ता जो है, वो इस दुनिया के रास्ता से अलग है। हमारा रास्ता परमेश्वर की ओर चलने वाला होना चाहिए, या परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर हम चलने वाले होने चाहिए। उसके लिए पौलुस जिस तरह लिखता है उन बातों का अनुसरण करें तो निश्चित हम परमेश्वर के मार्ग पर चल पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आमेन। ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಆದಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅದು ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದು. ಆಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ತಂದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ, ಇಡೀ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಭೆ ಪುನಃ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ದೇವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವಾಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರು ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೈತ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಮಂತ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಾಗಲಿ, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್ ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. इस हफ्ते में जो अपने जन्मदिन मना रहे हैं उनके नाम, और जो शादी की सालगिरह मना रहे हैं उनके नाम मैं पढ़ूंगा. 30 सितंबर, 30 सितंबर ईशांत जॉर्ज उनितन. 31 एलियाना विजय पॉल. 1 सितंबर विलियम राज नाटेकर. 2 सितंबर मार्गरेट सोलोमन हिरेकेरूर. स्मिता स्टैनली नेगल. मनीषा इमैनुअल बेन. 3 सितंबर सुशीलप्पा हिरेकेरूर. 4 सितंबर सुहासिनी जेम्स विक्टर. 5 सितंबर अविनाश एन प्रकाश. 3 सितंबर ಎಲಿಜಬೆತ್ ರವಿ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಫರ್ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಟರ್. 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಮನೋಹರ್ ಹಿರೇಕೆರೂರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಆಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು
ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡೋಣ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಆಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. आइए हम प्रार्थना करें. प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं. हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं. इस समय हम इन प्रियजनों को जो आपके पवित्र चरणों में नए साल अपने जीवन की पाए हुए हैं, पा रहे हैं, पिता, इन सभी को एक एक कर आपके चरणों में हम अर्पण करते हैं. प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप ईशांत को, एलियाना आंटी को, विलियम राज को, मार्गरेट सोलोमन हिरेकेरूर, स्मिता स्टैनली, मनीषा इमैनुअल बेन, सुशीला हिरेकेरूर, सुहासिनी, जेम्स विक्टर, अविनाश प्रकाश, इन सारे लोगों को आशीषित करें. जैसे अपने जीवन के नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, पिता चाहते हैं कि आप इनके साथ रहिए. जिस तरह अब तक आपने इन्हें संभाला, इन्हें संवारा, इनके जीवन को आशीषित किया, होने दे प्रभु कि आने वाले नए साल में भी परमेश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति होकर, परमेश्वर के आशीषों का प्राप्ति होकर अपने जीवन को परमेश्वर की योजना अनुसार बिता सके. ऐसे अनुग्रह करे. इनके ऊपर आपकी सुरक्षा कवच रखें. अंधकार के बंधनों से, शैतानी ताकतों से, बीमारियों से, हर एक बुरी चीज़ों से इन्हें बचाए रख और आपके मार्गों में अपने जीवनों को चलाते हुए रहें. ऐसे आशीषित करें. उसी तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु इन प्रिय परिवारों के लिए जो अपनी शादी की सालगिरह इस सप्ताह में मना रहे हैं. मिसेस एंड मिस्टर जेम्स क्रिस्टोफर जॉन विक्टर और मिसेस एंड मिस्टर गॉडविन मनोहर हिरेकेरूर, इन प्रिय परिवारों को पिता आशीषित करें. जैसे ये अपनी शादी की नए सालगिरह में प्रवेश कर रहे हैं, पिता होने दे ये पति पत्नियां अपने अपने रिश्तों को परमेश्वर के प्रसन्नता में हमेशा मजबूती से रख सके और अपने जीवनों को अच्छी रीति से बिता सके. ऐसे अनुग्रह करें. इनके परिवारों में पिता अंधकार की शक्ति, शैतानी ताकत या कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें न घटे जिससे ये लोग आपस में झगड़े या परमेश्वर से दूर हो. पिता इन्हें आशीषित करें और पिता इनके बच्चों को आशीषित करें. पिता परमेश्वर, फिर एक बार इन प्रियजनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. उसी तरह प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के हर एक परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, विशेषकर जो बीमार अवस्था में है, जो कमज़ोर अवस्था में है, जो बंधनों में है, उन सारे लोगों को पिता हम इस समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं. सभी को छू कर आप छुटकारा दे, परमेश्वर की बल प्राप्त हो सके. ऐसे अनुग्रह करें. पिता हम इस समय याद करते हैं सुतार आंटी के लिए, कुरी आंटी के लिए, लोबो आंटी के लिए, अर्थर आंटी के लिए, भाई जॉन इमैनुअल के लिए, जोएल बेन इस बच्चे के लिए. पिता आपका स्पर्श इन्हें दें ताकि ये प्रियजन पूर्ण रीति से स्वस्थ हो, अच्छा बल पाएँ, अच्छा आरोग्य पाकर पिता परमेश्वर के नाम में हमेशा संतुष्ट रह सके. ऐसे अनुग्रह करें. पिता फिर एक बार हम सारे लोग आपके पवित्र चरणों में अपने आप को अर्पण करते हैं. इस आराधना के पश्चात आपके बच्चे जो दान अर्पण करेंगे, उस दान को आप आशीर्वाद करें, उसे बढ़ाएं, आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग करें और पिता आसमानी आशीषों को इनके जीवनों में हर दिन हर पल उंडेलते रहें. फिर एक बार पिता हम सारे लोगों को फिर एक बार आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते स्वीकार करें. आपके नाम की मुद्रा हमारे जीवनों पर डालते हुए हमारी अगुवाई करें. धन्यवाद करते हुए सारा मान महिमा गौरव आप ही को देते हुए प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम में मांगते हैं. आमीन. अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सभी के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे. ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಂಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆಗಳಿದ್ದಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾವು ಸೇರಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್.